Bismillahirrahmanirrahim. So our today's topic is next chapter of Guyton, in which we have to first study the principles of gas exchange. Clear? What are these? Basically, a human lungs function of human lungs is to get in oxygen, get in air in the process of inspiration, hold the atmospheric air, go inside the human lungs. From that atmospheric air, our lungs extract oxygen. Clear? That extracted oxygen comes from atmospheric air, go to alveoli, from alveoli that enter in the blood, and from blood carbon dioxide leave the blood and enter in the alveoli. Now this process, why and how this occur, this is basically to understand this concept we have to understand some principles of this exchange. ठीक? Some physics of these gases, that is important for understanding. Clear? As you see this beaker or any vacuum type structure, clear? We have taken a gas in it. See here, if you put gas here on left side of this, there are more gas molecule. So what they will do, they will try to move towards the area where the gas molecule are less, until and unless the equilibrium is reached. Clear? So what is this process? This process is known as diffusion, movement of molecule from high concentration towards low concentration. What that is called? This is called diffusion. So in the diagram, clear cut, this is diffusion. Clear? Diffusion is important. Same diffusion of gases occurs in human lungs for oxygen and carbon dioxide. Clear? For that purpose, we will understand diffusion first. Movement from higher to lower concentration. This is definition of diffusion. Now, pressure and partial pressure you also have to understand for understanding the proper lungs function. First, you will understand pressure. You have studied pressure in physics, chemistry. What is pressure? Pressure is force exerted per unit area. Clear? So, according to that definition, what will be pressure of gas? That will be force exerted by molecules of gas on the surface at any given time. Clear? What is pressure of gas? Force exerted by molecule of gas on the surface at any given time. That is pressure of gas. Now, what is partial pressure? Basically, when we take in air, that air is not a single oxygen gas. This is mixture of gases. Our atmosphere contains oxygen, nitrogen, helium, carbon dioxide also. Majority concentration is of carbon dioxide and oxygen, nitrogen and oxygen, but also there are many gases. So then we have to introduce the concept of partial pressure. Partial pressure is the pressure of individual gas in mixture of gases. Clear? So in atmospheric gas, atmospheric air, if you take pressure of oxygen, that will be called as its partial pressure, because oxygen is mixed with nitrogen and other gases. So how this will be defined? The pressure of individual gas in the mixture of gases is called as partial pressure of that gas. The partial pressure of individual gases in a mixture are designed by the symbol P. PO2. PCO2 means partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of nitrogen, partial pressure of helium, and so forth in this way. P stand for partial pressure. Clear? Its equation is कि partial pressure is equal to concentration of dissolved gas, यानी it will directly be proportional to concentration of dissolved gas and inversely proportional to solubility coefficient. Solubility coefficient is fixed for each gas. Clear? Each gas has its specific solubility coefficient. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर गैस की अपनी खासियत की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट चेंज होता है. Another important thing you also have to study के this is asked most commonly in viva के tell the composition of atmospheric air. तो आपको पता हो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में क्या क्या है.
अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इसकी बताई 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। क्लियर? तो नाइट्रोजन भी है लेकिन निग्लिजेंट अमाउंट में, मेजॉरिटी में दो गैसेस है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन 21%। तो अब टोटल जो प्रेशर है इस मिक्सचर का एट सी लेवल, उसकी वैल्यू है 760 मिलीमीटर मर्करी। क्लियर? एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर क्या है सी लेवल पे? 760 मिलीमीटर मर्करी। नाउ अब हमने कहा कि इस टोटल के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा। जो ऑक्सीजन का है उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। जो इस 760 के अंदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जर्ट करेगा वो होगा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का। दोनों पार्शियल प्रेशर मिला के 760 प्रेशर होगा। क्लियर दिस पॉइंट? Therefore, we can calculate कि 79% अगर 760 टोटल प्रेशर का हम 79% लें तो वो हम कहेंगे नाइट्रोजन की वजह से उसकी वैल्यू बनती है 600 मिलीमीटर। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 79% से तो ये वैल्यू आएगी। एंड 21% जो है वो 160 मिलीमीटर मर्करी बनता है, वो होता है ऑक्सीजन की वजह से। क्लियर दैट? सो दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। दस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन दी टोटल प्रेशर क्या है? वो 760 मिलीमीटर मर्करी है इसका, यानी टोटल प्रेशर 760 है, उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर 600 एंड ऑक्सीजन का प्रेशर 160 है। So we can say कि partial pressure of important gas oxygen is 160 millimeter mercury. Where in atmosphere? Clear? अब importantly एक और parameter के we have to understand के we have to diffuse these gases into the blood from alveoli. So what are the factors that affect the rate of diffusion of these gases? Clear? These factor is कि how is that gas soluble in the fluid? Fluid इसलिए बात कर रहे हैं because these have to be diffused in the blood. Blood is a fluid that contains plasma. So solubility of gas in the fluid. Then it is another important factor कि cross sectional area of fluid, कि how much cross sectional area is involved in the diffusion. The more the cross sectional area, the more the diffusion. Clear? How much is the distance through which the gas must diffuse? कि कितने फासले तक डिफ्यूज होना है गैस ने। जो एल्वोलाई के अंदर गैस पहुंच गई उसके और ब्लड में जहां उसने पहुंचना है बीच का फासला कितना है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। और मॉलिक्यूलर वेट गैस पे भी डिपेंड करता है। हैवी मॉलिक्यूल होंगे गैस के तो उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट डिफ्यूजन में कम हो जाएगी डेफिनेटली। छोटे मॉलिक्यूल होंगे तेजी से जाएंगे आगे। तो दीज आर द मेन फैक्टर 4। क्लियर? Now we will do the equation for that ke how these factor affect this. D is the diffusion. Now this equation you have to understand for BCQ point of view. Ke D means diffusion is directly proportional to these parameter, inversely proportional to lower parameters. Now D is the rate of diffusion. It is directly proportional to this upward. What is that? Delta P. This is called as partial pressure difference. इसको समझें। मेम्ब्रेन है जिसमें से गैस ने डिफ्यूज होना, सपोज करें एक तरफ गैस का प्रेशर और दूसरी तरफ जितना फर्क होगा उतनी तेजी से डिफ्यूजन होगी। ये फर्क क्या है? मॉलिक्यूल का डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, यानी पार्शियल प्रेशर का। तो वो जितना फर्क ज्यादा होगा उतनी तेजी से गैस डिफ्यूज करेगी। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाथवे। जितना बड़ा एरिया डिफ्यूजन का इन्वॉल्व होगा डेफिनेटली डिफ्यूजन ज्यादा होगी। S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। S क्या है? सॉल्युबिलिटी है गैस की। D क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? छोटी d ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ये इनवर्सली इसलिए है कि जितना फासला कम होगा तेजी से गैस जाएगी, फासला ज्यादा होगा गैस तेजी से कम तेजी से जाएगी। क्लियर?
एंड मॉलिक्यूलर वेट गैस का है, ठीक है, उससे भी इनवर्स रिलेशन है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा डिफ्यूजन कम होगी, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा डिफ्यूजन ज्यादा होगी। अभी एक अलग से बात कर रहा है सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, दीस टू फैक्टर डिटरमाइन द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। जो हमने लफ्ज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का, वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे और मॉलिक्यूलर वेट पे। That is the relative rate at which different gases at the same partial pressure levels will diffuse are proportional to their diffusion coefficient। ये कह रहा है कि अगर एक ही पार्शियल प्रेशर हो और मुख्तलिफ गैसें हमारे पास हो, तो उनकी पार्शियल प्रेशर तो एक है, लेकिन उनकी स्पीड ऑफ क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, या तेजी के साथ जाना, स्लो जाना, उनकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन वो डिफरेंट होती है, जो कि डिपेंड करती है उनकी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अब this is important to understand this one. Assuming that diffusion coefficient for oxygen is 1, अब ऑक्सीजन के साथ अगर हम कंपेयर करें, ऑक्सीजन की 1 लें, the relative diffusion coefficients for different gases of respiratory importance in the body fluid are as follows। तो वो क्या होंगी, बाकी की ऑक्सीजन हमने 1 कंसीडर किया, कार्बन डाइऑक्साइड देखें 20.3। व्हाट इट मीन, इसको समझें। Now be concentrated, oxygen if one time diffuses through membrane at same pressure, carbon dioxide will diffuse 20 times। यानी ये जिस स्पीड से जाएगा उसी पार्शियल प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल उससे 20 टाइम तेजी से क्रॉस करेंगे उस जगह को। उसकी वजह क्या है, उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम कहेंगे बॉडी से जितनी जल्दी वो निकल जाए तो नेचुरली उसकी स्पीड जो है वो, उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। So we'll continue. The rate of diffusion of different gases is different। See, now importantly कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन नेचुरली रेट इसलिए ज्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जल्दी बाहर निकले बॉडी से टॉक्सिक गैस, तो ये बेहतर है बॉडी के लिए, ठीक है। तो नेचुरली उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड अदर गैसेस का भी लिखा हो, तो आपने इसमें याद जो करना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफरेंस याद करना है, ठीक। Now composition of alveolar air and atmospheric air are different। तो एल्वुलर एयर और एटमॉस्फेरिक एयर की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है, वो हम आपको बता देते हैं क्या है। ये थोड़ा सा डायग्राम, दिस इज योर बुकिश डायग्राम, कंसंट्रेट ऑन दैट कि व्हाट इट से। नाउ इसमें दिखाया गया है कि पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, हम बता चुके हैं कंपोजिशन, नाइट्रोजन है 79%, ऑक्सीजन है, ये देखिए लिखा हो। पहले आप इस एरो को पढ़ें सिर्फ, बाकी को छोड़ दे। एटमॉस्फेयर इसमें नाइट्रोजन है 78.62%, तो जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं 79%। ऑक्सीजन जो है 20.84, तो 21 कंसीडर करते हैं। अदर जो है माइनर गैसेस जिनकी पॉइंट्स में परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। देखिए एटमॉस्फेयर में कितनी कम है। वाटर प्रेशर जो है, वाटर वेपर्स का प्रेशर है, पानी गैसेस फॉर्म में उसकी बात कर रहा है 0.52, इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर में मिला के बनता है 760। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है जो एल्वोलाई के अंदर है। यहां देखिए एल्वोलर एयर, इसकी कंपोजिशन देखिए, एल्वोलाई के अंदर जो एयर आ रही है, ये अगर 597 है उसका प्रेशर, यहाँ 569, इसकी परसेंटेज 78 पॉइंट समथिंग है, 74.9 है। ये अब बताएगा कि इन प्रेशर्स के अंदर डिफरेंस कितना है। ऑक्सीजन में देखें, एल्वोला एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्वोलाई में पहुंचते पहुंचते 104 हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में ये है, एल्वोलाई में ज्यादा है।
तो ये बता एल्वोलाई में ज्यादा है जनरली इसलिए कि इसने बाहर निकलना है तो ब्लड से आ रही इसलिए ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन कम क्यों हुई ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जनरल बात ये है कि द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई एंड एटमॉस्फेरिक एयर आर डिफरेंट, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? Now, what are the reason of these that we will discuss? There are several reasons. First, alveolar air is only partially replaced by atmospheric air with each breath. ये समझना ये है इसमें कि एल्वोलाई के अंदर जो एयर मौजूद है, सपोज करें हमने अभी सांस को बाहर निकालना है तो जो एयर हमारे एल्वोलाई में मौजूद है वो तमाम की तमाम यकदम से बाहर नहीं जाती कि सारी गैस बाहर चली जाए, बाहर की नई गैस अंदर आ जाए, ऐसे नहीं होता। ये पार्शियली रिप्लेस होती है, स्लो स्लो रिप्लेसमेंट होती है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, आगे पढ़ेंगे। Second, oxygen is constantly being absorbed into pulmonary blood from alveolar air. चाहे इंस्पायरेशन हो रही है उस वक्त और इवन एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ एयर बचती है तो ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूली हमारे पल्मोनरी ब्लड में आता रहता है, ठीक है, एल्वोलाई से अंदर आता रहता है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉन्स्टेंटली डिफ्यूजिंग फ्रॉम द पल्मोनरी ब्लड इन द एल्वोलाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड है कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज होता रहता है कहां पर? पल्मोनरी ब्लड से एल्वोलाई में। तो इन वजूहात की वजह से ये इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स में फर्क आएगा। फोर्थ पॉइंट, dry atmospheric air that enter the respiratory passageway is humidified. ह्यूमिडिफिकेशन सुना है? हवा में नमी। नमी क्या होती है? मीन्स हवा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का आना, इसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। अब ये कह रहा है कि जब ये एयर हमारे नोज से इंटर होती है तो ये इन कांटेक्ट होती, एयर की बाउंड्री क्या है जिसमें से गुजर रही रास्ता, that is composed of nasal mucosa, फिर ट्रेकिया का म्यूकोजा, ब्रोंक्यूल का म्यूकोजा। ये म्यूकोजा अंदर से क्या है? ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जरा अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते रहते हैं इस एयर में, तो ये हमारे एल्वोलाई तक पहुंचते इसमें काफी सारे वाटर वेपर्स ऐड हो जाते हैं, पानी के बुखारात ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। इसमें जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कम इसलिए कि रिलेटिवली पानी इसमें ज्यादा आ गया, ठीक, तो दैट विल लीड्स टू डिफरेंट इन इट्स कंपोजिशन। Atmospheric air is humidified and respiratory passageway. Atmospheric air is composed almost entirely of nitrogen and oxygen. It normally contain almost no carbon dioxide and little water vapor. तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या है? नॉर्मली उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्या होता है, वो ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर होती है, ठीक है। However, as soon as atmospheric air enters the respiratory passageway, it is exposed to fluids that cover the respiratory surfaces. The partial pressure of water vapor at a normal body temperature of 37 degrees centigrade is 47 millimeter mercury, which is therefore the partial pressure of water vapor in the alveolar air, ठीक है। Because the total pressure in the alveoli cannot rise to more than the atmospheric pressure, जो एटमॉस्फेरिक से तो ज्यादा हो नहीं सकता ये प्रेशर, ठीक है, उतना ही रहना है, तो उसमें मेंटेन करने के लिए क्या है, वाटर वेपर सिंपली डाइल्यूट ऑल दी अदर गैस। तो इस 760 के अंदर वाटर वेपर्स का भी प्रेशर होगा जो हमने देखा, जिसकी वजह से ड्राई एयर इफेक्ट हो जाएगी, उसमें कुछ गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाएंगी जैसे ऑक्सीजन की, ये रिलेटिव कमी है, क्वांटिटी कम नहीं हो रही, ये जो वाटर ऐड होने से प्रेशर कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। The air dilutes the oxygen partial pressure at sea level from average 159 in the atmospheric air to 149 in the humidified air, और जो है फिर एल्वोलाई में पहुंचते पहुंचते ये 104 हो जाती है, and it dilutes the nitrogen partial pressure from 597 to 563। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है because that have to be diffused in the alveoli. Now this is also your bookish diagram which show के if our alveoli contain that much amount of gas, ठीक, see that at the left corner, upper left corner, in first breath
some gas will come out. In second breath again some gas molecule will out, third gas again out, fourth again molecule are decreasing, but still even up to the 16th breath still some gas molecule remains. What is the reason behind that? ये बात ये कह रहा है कि हमारे पास अगर एल्वुलाई में एक गैस है, हम उसको रिप्लेस, नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का काम तो उसको रिप्लेस करना है, जो एल्वुलाई में है वो बाहर जाए, बाहर से नहीं आए, लेकिन ना 100% एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। उसका रीजन ये कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े जाते रहते हैं, यकदम से नहीं जाते, ठीक है। उसका फायदा है कुछ, उस पे आते हैं क्या। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लंग्स की क्या है, 2300 ml है, क्लियर। लंग्स की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स के अंदर एयर रह जाती है उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, that is 2300 ml. Only 350 ml of new air is brought into the alveoli with each normal inspiration, and the same amount of old alveolar air is expired. अब हर ब्रीथ के साथ 500 एयर हम अंदर लेते हैं, 500 में से 150 कहाँ जाती है, डेड स्पेस में। 350 ml एक्सचेंज हो जाती, यानी अंदर आती है, सेम अमाउंट बाहर जाती। मल्टीपल ब्रीथ्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज मोस्ट ऑफ द एयर। अब कह रहे हैं यकदम से एक्सचेंज नहीं होती, हमें कई ब्रीथ्स चाहिए पुरानी को एक्सचेंज करने के लिए। उसका फायदा क्या है कि यकदम से कंपोजिशन में गैसेस के ज्यादा चेंज नहीं है कि बॉडी में। अगर ये सारा एक साथ बाहर निकल जाए तो दूसरे के आते आते बॉडी के अंदर उस गैस की कंसंट्रेशन में ड्रामेटिक चेंज आएगी, जो कि बॉडी को अफेक्ट करेगी। इस वजह से स्लो स्लो रिप्लेसमेंट होती है with normal alveolar ventilation। अब ये ग्राफ, this is your bookish graph, see that, see the normal value as red, कंसंट्रेशन ऑफ गैस हम देख रहे हैं कि जो गैस अगर हमारे पास एल्वुला है, सपोज हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो कितना टाइम चाहिए उसकी रिप्लेसमेंट के लिए, हम नीचे दे रहे हैं। सपोज इसकी हाफ क्वांटिटी देखें, 50% कहाँ आएगी, यहाँ क्रॉस करेगा 50%, ठीक। तो अब उस पे आते हैं क्या, अगर ये 2 दफा ज्यादा हो जाए एल्वुलर वेंटिलेशन, नॉर्मल वेंटिलेशन अगर हम नॉर्मली 10 दफा सांस ले रहे हैं तो ग्राफ यहाँ है, अगर डबल कर दें 20 दफा सांस ले रहे हैं मिनट में तो फिर ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। अगर 5 दफा सांस लेना शुरू करें, हाफ कर दें एल्वुलर वेंटिलेशन को, तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन याद है। With normal alveolar ventilation, about half of the gas is removed in 17 seconds. अब ये 17 सेकंड तकरीबन यहाँ आएंगे। यहाँ से अगर हम क्रॉस दें इसको तो यहाँ तक ये कह रहा है नॉर्मल हाफ गैस यानी 50%, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है 17 के साथ, तो 50% गैस कहाँ रिमूव हो जाएगी, 17 सेकंड, ठीक। विद अ पर्सन रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन इज 1/2 नॉर्मल, अगर आधा हो जाए तब ये गैस कितने सेकंड में रिमूव होगी, 34 सेकंड में। क्यों 34 में, यहाँ आ जाए, ये 50% कंसंट्रेशन ये किसके साथ मैच, यहाँ अगर करेगा तो एल्वुलर वेंटिलेशन यहाँ इसकी वैल्यू 34 के साथ मैच करेगा यहाँ पे ग्राफ। तो अगर हाफ हो जाए 34 सेकंड में आधी गैस रिप्लेस होगी, और अगर ट्वाइस कर दें उसको लिखा 8 सेकंड में, ट्वाइस का मतलब ये ट्वाइस हो गया तो यहाँ 50 रीच हो रहा है, यहाँ 10 से भी कम में 8 सेकंड में रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एल्वुलर वेंटिलेशन जितनी बढ़ा रहे हैं हम देखें ग्राफ से नीचे, उतनी तेजी से गैस एक्सचेंज हो रही है, क्लियर। इसीलिए व्हेन वी नीड दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ एक्सरसाइज इज ब्लोन आउट, शुड बी ब्लोन आउट अर्लियर, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे पास हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, हम मजीद तेजी से सांस लेते हैं, क्लियर। नाउ स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एल्वुलर हेयर क्या है, हेल्प स्टेबलाइज रेस्पिरेटरी कंट्रोल, कैसे करता है। स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एल्वुलर एयर इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन प्रिवेंटिंग सडन चेंजेस इन द गैस कंसंट्रेशन इन द ब्लड, सडन चेंज नहीं आती गैस की कंसंट्रेशन में। This makes the respiratory control mechanism much more stable than it would be otherwise, and it helps prevent excessive increase and decrease in tissue oxygenation, tissue carbon dioxide concentration and tissue pH when respiration is temporarily interrupted। ये बात कर रहा है बेसिकली कि अगर यकदम से देखें पहली ब्रीथ में यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो निकल जाए तो ब्लड के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ब्लड के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन,
ये हम आगे पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में कि हमारी ब्रीदिंग को स्टिमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो अगर एब्रप्ट चेंज हो जाएगी तो यकदम से या तो हमारी रेस्पिरेशन रुक जाएगी या बहुत तेज हो जाएगी, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए स्टेबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, so here ends our lecture. What we have discussed today basically we have discussed properly for proper gas exchange we should know the diffusion mechanism, movement from high concentration to low concentration. Then pressure of partial pressure we should understand the pressure in the mix of individual gas in mixture of gases is called as partial pressure. Then we have discussed diffusion depend upon directly proportional with the partial pressure difference with the area, means respiratory area, with the solubility coefficient, and inversely related with the distance of diffusion and molecular weight. This we have discussed. Then we have discussed the solubility coefficient of carbon dioxide is 20 times that of oxygen. Then we discussed the difference between the composition of alveolar air and atmosphere air. We discussed due to the humidification mechanism, the partial pressure of gases changes. Clear? Then we discuss slowly there is a replacement of the gases, and importance of this is to prevent dramatic changes in the gas concentration in the body. Okay? So thank you so much for today's lecture.